हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट फ्रॉम गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन लाइका गोल्ड और ये है हमारा लाइका रेडियो लाइका गोल्ड यूट्यूब चैनल एंड आई नो वी गॉट मिलियंस ऑफ listeners and people who watch this YouTube channel। हमारे आज एक उम्दा गेस्ट है और इन ये गेस्ट के बारे में अगर मैं बोलूं उससे पहले उनका कमाल मैं आपको दिखा दूं तो उसका मजा और ही होगा। सो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट हिम टू फर्स्ट ऑफ ऑल to sing a song for us and then I shall introduce him. Here we go. Just listen to this voice and the guitaring. तू स्टारबक्स मैं बेकार बक्स, तू रिच गर्ल मैं गरीब शख्स। ऑनेस्टली तू स्टारबक्स मैं बेकार बक्स, तू रिच गर्ल मैं गरीब शख्स। तेरी मेरी जोड़ी रब ने ही ना बनाई, मैं बंदा बिल्कुल देसी तू लड़की हाई फाई। तेरी मेरी जोड़ी रब ने ही ना बनाई, मैं बंदा बिल्कुल देसी तू लड़की हाई फाई। हर 16 आने सच्ची है ये बात बस, तू स्टारबक्स रे मैं बेकार बक्स, तू रिच गर्ल मैं गरीब शख्स। तू स्टारबक्स रे मैं बेकार बक्स, तू रिच गर्ल रे मैं गरीब शख्स। That's a fabulous start, मैं कहूँ। Starbucks, what a beautiful catch hook of a song. And now I can tell you who this is. 10 दिन पहले इनका गाना रिलीज हुआ है, हाँ जी, and that Sushant Rinku. Sushant Rinku is known by not only the name of Sushant but Sushant Rinku. And I shall talk to him about his career. I shall talk to him ये कैसे गिटार प्लेयर से एक सिंगर बन गए और आज भी ही इज प्लेइंग गिटार विद ऑल द प्लेबैक सिंगर्स एंड इनके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। सो दैट्स सुशांत रिंकू। आपका स्वागत है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much Bali ji, and thank you so much Laika for giving me this opportunity to come to your studio. You have come to London. Yeah. Why are you here? I just came 2 days back for a show called Ghazal Bahar. जी। It has been organized and Mr. Jazim was there as a singer, then Ashok Khosla was there, Radhika Chopra was there. Yes. So but there is a catch in that show. Show was okay, it was a good show, and but I found a person whom we had admired long time back, who who is a very big star and who is right now sitting in front of us. And it was a very shocking moment for me because I have just listened to his songs long time back, and we said, yaar kya gaane hain, मतलब it's such a trend setter. And when he was sitting in front of us तो मुझे लगा यार, और वो भी लाइटों में पता नहीं लगा, बाद में पता लगा कि who he is, because हमने इनको किसी और फॉर्म में देखा था। तो आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी टू बी हियर। रिंकू रिंकू रिंकू, ये तेरा इंटरव्यू है मेरे भाई, तू मेरे को इतना बढ़ावा ना दे। नहीं अपना इमोशन शेयर करना तो कोई बुरा नहीं है। हाँ नहीं, बस इट्स सो फैबुलस। आई वाज सिटिंग इन द ऑडियंस और मैं बड़ी प्रशंसा कर रहा था आपकी गिटारिंग की, एंड एवरी टाइम मैं हाथ ऊंचा कर रहा था। यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी देन। फिर बाद में जब जाजिम ने बताया तो ऑफ कोर्स यू केम टू फाइंड आउट एंड ऑल दैट, एंड बिलीव यू मी, यू नो आपके गाने जो हमने फॉलो किए हैं, आई मीन आपके तो कितने 35 मिलियन व्यूअर्स है अभी, तो उसमें से मैं भी हूँ, you know. Thank you so and much. We are quite your fans. It's no doubt about it. We are talking about Sushant Rinku. अभी आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? 19 साल से आप गिटार बजा रहे हो, एंड कैसे शुरुआत हुई, क्या प्रोग्रेशन हुआ, एंड जगजीत सिंह तक आप मुझे बात बताइए। हाँ, actually I started learning guitar after my 11th class. I belong to a music family only. My brother plays sitar and I'm into this. My father was a music lecturer. नाम भी बता दीजिए भाई साहब का। मेरे ब्रदर का नाम है हरविंदर कुमार शर्मा. He keeps on visiting London for many shows. Yes. And I started learning from my guru Sudarshan from Chandigarh only. जी. But then he and Mr. Dinkar and then all friends instituted me. They pushed me to Bombay के जाना है. जी. Then I met Mr. Arshad Ahmed from Mumbai. You know him. क्या बात है,
Yes. So he was with Jagjit Singh for 20 years, more than For 20 years. years, yes. So I was so lucky that he adopted me as a son, and he just, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया without charging anything, without बिल्कुल बच्चे की तरह उंगली उंगली रख के सिखाया. So then playing with Jagjit ji was a dream come true when I came into his circle in 2007. Yes. Paras took me there. Okay. फिर 2007 से 2011 मैंने उनके सारे शोज बजाए. क्या बात है. और वो शोज ऐसे थे कि लाइक घर आके, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि आप घर आके आपको लगता है यार आज कुछ किया आपने कोई शो बजाया. हाँ. या यू हर्ड समवन जिसकी आवाज आपके यहाँ से निकलती नहीं है. हाँ. जिसकी शायरी आपके दिल से निकलती नहीं है. हाँ. सो कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, 3-4 चीजें हैं, उनको मिला के बनता है जगजीत सिंह जी. इट्स नॉट कि भाई गा दिया गाना और काम खत्म हो गया. नहीं, उसकी पोइट्री, उसकी कंपोजिशन, देन अरेंजमेंट, देन द काइंड ऑफ शोज वी डिड, यस, सबको मिला के एक शो बनता है. सही बात है. सो वो शोज 4 साल ऐसे थे कि इट वाज पीक. मैं अभी किसी के भी साथ बजाऊं, वो लेवल और वो पोइट्री और वो गाना नहीं मिल सकता. ओके, अब एक सिचुएशन मैं खड़ी करता हूँ. जगजीत सिंह के साथ, पाजी के साथ आपका पहला शो, यू आर सिटिंग विद जगजीत सिंह, द ग्रेट नेम, और पहला शो, नर्वस थे? बहुत ज्यादा. पहला शो शनमुखानंद में था, तो पारस ने मुझे बोला कि हमें चलना है. मैं कहा ठीक. उसने मुझे वहां तक नहीं बताया कि जगजीत जी का शो था. व्हेन आई सॉ द होर्डिंग, लाइक दिस वॉलपेपर पर बड़ी सी फोटो लगी, मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ. मैं कहा इनका शो है? तो कहता हाँ. अरे मैं कहा बताना तो चाहिए आदमी, मेंटली थोड़ा नहीं पाजी, अब बजा लोगे, अब बजाओ जाओ. देन ही केम, और उनका एक और था. ओह यस. कौन है गिटार पे? अच्छा ये नया लड़का है, क्या नाम है? रिंकू नाम है. अच्छा किससे सीखता है? अच्छा अर्शद जी. ओके बैठ बजाओ. देन ही आस्क्ड मी इन 3rd और 4th गजल सोलो बजाएगा. अच्छा पूछा सोलो बजाएगा? हाँ. फिर तो मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ बजाने की. ठीक बजाया, ऊपर वाले ने बड़ा, भगवान ने वो लाज रखी, खुद क्लैप व्लैप हुआ. अच्छा. ये अनाउंस्ड आल्सो, ये लड़का मेरे साथ पहली बार बजा रहा है. अच्छा. तो वहां से फिर वो शुरू हुआ, और फिर तो बड़े सारे किस्से, और मतलब, और ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. वो स्टेज पे भी जोक्स मारते हैं. हाँ, तो फिर क्या, पंजाबी को पंजाबी मिल गया, बस चीजें चेंज हो गई. पंजाबी को पंजाबी मिल गया. सही बात है. हाँ, बट देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग, और वो सब स्टेज पे भी वो सब, एंड वी नेवर रिहर्स्ड. हाँ, एक भी शो के लिए उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मेरे घर आ प्रैक्टिस कर, ये कुछ नहीं. एवरीथिंग वाज ऑन. आपने मुझे एक हादसा बताया था कि जगजीत जी एक गजल गा रहे थे, तो उसमें वो वर्डिंग्स भूल गए. बहुत फनी मोमेंट था. दिल्ली में शो था. So he was singing like. Listen to this. बड़ा अच्छा. This incident that occurred with Jagjit ji was on stage and he was playing and all the musicians were there. And आगे क्या हुआ? ये पहले गाना उनका है वो. प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है. बहुत प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. थोड़ा सोलो बजाओ ना. बहुत खूब, बहुत मिठास है. उसमें एक शेर आता है. हाँ जी. जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था. जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था. उनके दिल तक जाना था. रिमेम्बर दिस. लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है. तो समहाउ ये लाइन उनको स्लिप हो गई. उन्होंने इमीडिएटली मेरी तरफ पीछे देखा, कहते यार वो लाइन क्या थी? मैं कहा वो दिल की बात नहीं थी. तो ही जस्ट पिक्ड अप, दिल की बात नहीं थी. उनको इमीडिएटली रियलाइज हुआ यार दिल की बात नहीं थी, उसके जिस्म तक जाना था. ये तो बहुत नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा. हम मेरे को पीछे देख के बोलते कहते जुतियां पहनियां सीगियां हुणे. मैं कहा अंकल तुसी मेरी गल सुनी नहीं. मैं कहा मैं तुहानू कह रहा तुसी चक लिया उन्नी देर च.
कहते तू बहुत खराब है, तू जान के बोला है। मैं कहता नहीं, जान के मैं क्यों बोलूंगा, हाँ। इमीडिएटली एकदम। और यूजुअली वो कभी अपनी पोएट्री भूलते नहीं थे, नहीं, बट पर somehow ये एक हादसा जो हुआ, हाँ, कहते शेर सारा उल्टा ना था, सो फनी, दिल की बात नहीं थी, उसके जिस्म तक जाना था। कहते मार पैनी सी हुने लोग, एक्चुअल वर्डिंग क्या थे? जिस्म की बात नहीं थी, उसके दिल तक जाना था। दिल इट्स तक सो जाना रिस्पेक्टफुल एंड इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। दिल की बात नहीं थी, उसके जिस्म तक जाना था। जो समझ रहेंगे उनको बहुत हंसी आएगी। तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, बट जी जी अमेजिंग जी। पर्सन, और इतना खुला, और क्या पोएट्री, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, तो एक बात और कहो मुझे कि आपने इतने सालों के बाद सडनली गाने का कैसे सोच लिया? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब 2011 में वो हादसा हुआ जिसमें उनकी डेथ हो गई, इट वाज वेरी शॉकिंग, बिकॉज क्या है, बचपन से उस चीज का सपना देखा कि उनके साथ बजाना। शॉकिंग टू द होल वाइड या वर्ल्ड, नो डाउट। तो यस, बड़े दिन ऐसे हुए जो बिल्कुल छुप छुपी, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे को तब भी ऐसे, आई कैन है अंडरस्टैंड ना। दैट। यस, तो इट वाज लाइक ए ड्रीम क्या है। Yeah. तो ये लगा, और 21 तारीख को हम लोग देहरादून से इकट्ठे फ्लाई किए, ओके। और 23rd को शो था, आधा जगजीत जी का, आधा गुलाम अली साहब का। तो पूरा ओह, पैक्ड था हॉल। अच्छा। तब तक इन्होंने बताया नहीं कि ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हरिहरन, उनके ऑफिस से, कि तुम्हें हरिहरन जी के साथ बजाना है। ओह, तो मैंने कहा हरिहरन जी कहाँ से आ गए, आधा शो उनका, आधा शो, तब तक इन्होंने बताया नहीं था। तो देन आधा शो हरिहरन जी ने गाया, आधा गुलाम अली साहब ने गाया। जी जी तब जी। के बाद पता लगा कि ऐसा हो गया। हम्म, फिर जब डेथ हुई तो वो बहुत ही बड़ा शॉक था, कितने दिन कोई फैमिली से बात नहीं हुई। देन आई टोल्ड माय वाइफ, मैं कहा यार बड़ी चीजें तंग कर रही हैं, आई नीड टू रिकॉर्ड समथिंग। तो यूट्यूब पे भी ये है, अगर आप सुनेंगे, हर रोज करके मेरी गजल है, जी, हर रोज बाय सुशांत, लिखेंगे आ जाएंगे। या, तो वो गजल जो है वो मैंने, प्रकाश पटेल करके अरेंजर हैं जिन्होंने दिल दे चुके सनम अरेंज किया, ये किया, हाँ जी, बट मैंने उनका कोई कवर नहीं गाया क्योंकि इतनी औकात भी नहीं है, और ना बात बन सकती है कभी भी। तो फिर मैंने अपनी ओरिजिनल गजल गाई, और वो गजल उन्होंने, मैंने कीव यूक्रेन जाके 35 आई टुक 35 म्यूजिशियंस फ्रॉम फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। ओह, सो आई स्पेंड ऑल माय सेविंग्स इन दैट, सारी। क्योंकि मैं सभी आर्टिस्ट से एक बात बोलना चाहूंगा, आप खुद इतने बड़े कलाकार हो, कि आदमी, स्पेशली आर्टिस्ट जो हैं, वो बाहर से बहुत बार टूटते हैं, रिपेयर होते हैं, टूटते हैं, रिपेयर होते हैं, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी चीज को प्रोड्यूसर बोलता है बकवास है, आपकी सबसे बकवास चीज को प्रोड्यूसर बोलता है बहुत अच्छी है। सो यू नेवर नो कि चल क्या रहा है। सही बोले। लेकिन कुछ कुछ क्रैक्स जो अंदर पड़ते हैं, हाँ, उनको रिपेयर करना बड़ा जरूरी होता है। तो कितना सेविंग्स था आपका जो आपने पूरा डाल दिया इसमें? मैंने इस पे करीबन 12 लाख रुपए खर्च किया 12 लाख रुपया फॉर वन सॉन्ग? और वन सॉन्ग, And that was a tribute to जगजीत Jagjit. जगजीत जी। And और उसके लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, माय फ्रेंड इज हियर लंदन में, उसने भी मेरी हेल्प की। यूक्रेन में मेरा फ्रेंड था, बोला तू आ जा यार, करना है तो हम कर लेंगे, तो डर मत। वीडियो शूटिंग यूक्रेन में यूक्रेन हुआ? में हुआ। गाना कौन सा है? हर रोज। हर रोज। हाँ जी, हर रोज आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। उसके ज्यादा व्यूज नहीं है जी, बट अगर वो मैं नहीं करता तो शायद मैं अंदर से टूट जाता। तो आई हैव टू रिपेयर माई सेल्फ एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द हर्ट यू बिकॉज ऑफ द हैड हर्ट। हाँ जी, जगजीत जी के साथ। हाँ। फिर उसके आपने आपका ये सिंगिंग करियर हाँ, शुरू किया, राइट? मतलब उसके बाद फिर अशोक जी ने अपने उसमें रिलीज किया उसको, एंड पंकज उदास जी का जो शो होता है खजाना, उसमें सब आर्टिस्टों ने मिलके मेरा वो गाना रिलीज किया। बहुत खूब। एवरीबडी वाज ऑन द स्टेज, ऋचा जी थे, रेखा भारद्वाज जी। थी, टाइम्स की गौरी, टाइम्स वालों ने रिलीज किया। जी। गौरी हैज बीन अ ह्यूज सपोर्ट इन माय लाइफ, बहुत अच्छा। फिर आपने एक एल्बम किया, क्यों? हाँ, क्यों मैं उसके, ये नहीं पूछ रहा कि क्यों किया, हाँ, मैं बोलता हूँ एल्बम हाँ, का टाइटल है क्यों। हाँ, उससे पहले गाना किया मैंने जानी के साथ में, तेरे बिना, वो भी बहुत अच्छा था। देन क्यों आई डिड विद कुमार पाजी, आई एम श्योर। कुमार पाजी, द हाँ, ग्रेटेस्ट राइटर हाँ, ऑफ आवर बॉलीवुड एट द हाँ, मोमेंट। आप कुमार के बारे में कुछ बताइए प्लीज, हाँ। कैसे और कैसे जैसे एक गाने शेर है ना इन्होंने कि लिखे हैं? मंजिल मिल ही जाएगी भटकते तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। तो बात सारी घूम फिर के वही है कि एफर्ट तो आना चाहिए। कुमार कुमार बहुत ही लीजेंडरी राइटिंग है, हमारे इंडस्ट्री का राइटर है, जी जो जिनको हिट मशीन के नाम से जाना जाता है। जी जी आज जी। की डेट में हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक बार उनके उसमें जरूर जाता है, यार एक गाना उनसे ले लो। अभी लेटेस्ट उनका पठान है, अभी जवान आ रही है, डंकी आ रही है। पठान वही उन्होंने किया। अच्छा। ही रोट 21 साल पहले गाने, तारे गण गण याद तेरी मैं था, 21 साल हो गए, आज भी वो गाना सुपर हिट है। आज भी गाना सुपर हिट है। आपका उन्होंने भी मेरे गाना है, लिए एक गाना आई लिखा, रिमेम्बर। हाँ, पंजाबी कादा। वो गाना एक्चुअली वाज सपोज्ड टू बी ये फॉर नचना नहीं रिटन आता। फॉर हनी सिंह, हाँ, पर कुछ ऐसे ही पढ़ा रहा था तो उन्होंने दे दिया हमें। हाँ। तो मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा ऐसे मैंने कंपोजिशन बनाई है क्यों। ये भी कमाल की बात है, मुझे कैमरे में बोलते हुए कोई इसका वो नहीं है। आई नो के हाउ मच ही चार्जेस, ही इज यू नो हाई एंड उसमें आते हैं, हाई एंड माने मतलब के एवरेज? महंगे राइटर हैं, हाँ, है ना, क्योंकि बॉलीवुड में इतने गाने हैं, ही डिजर्व्स एवरीथिंग। अराउंड 1600 सॉन्ग्स आर देयर।
उनके Okay. जो हैं। Okay. तो मैंने उनको बोला कि मैं कहा आपका फीस बहुत है, आई कांट अफोर्ड दैट, बट फिर भी मैं कर लूंगा, आप एक गाना लिख दो। Okay. तो उन्होंने ये गाना सुना क्यों, मेरे को बोलते ठीक है। द डे आई रिकॉर्डेड माई दिस सॉन्ग क्यों विद ज्योतिका टांगड़ी, उसने भी गाया। Okay. तो मैंने शोज से पैसे इकट्ठे करके चेक बनाया हाँ. एंड आई केप्ट चेक, क्योंकि वो आ रहे थे स्टूडियो में। तो मैंने जो उन्होंने गाना सुना, मेरे को सुना, तो मेरे को बोलते पर्स में कितने पैसे पड़े हैं, पर्स में कितने पैसे होते हैं। मैंने पर्स ऐसे देखा, मैं कहा जी ये 500-600 रुपये पड़ा है। उसमें से 100 रुपये निकाला, कहते आ गया पेमेंट इसका। नहीं यार. चेक मेरे पास पड़ा है सर अभी तक। कुमार. कुमार हाय. 101 रुपया लिया। Bless him. कहते Bless him. कहते आ गया मेरा पेमेंट, तूने इतना अच्छा गाया और इतना अच्छा गाना बन गया, आई एम वेरी हैप्पी, ये आ गया पैसे मेरे। और आज वो ही YouTube पे it's got about what 35 million 35 views. million views, yeah. 35 million. हाँ. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू। Congratulations. सो मैं आपको उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। हाँ प्लीज सुशांत. वो ये लोगों का तो इतना बड़ा हाथ है हम कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। You are listening to Sushant Rinku, and we are so glad that he's come to our Leica studios today. And you are watching Leica Radio, Leica Gold YouTube channel. क्यों एक जीण लई तेरी याद काफी नहीं, क्यों नजरां दे लई तेरा ख्वाब काफी नहीं, क्यों एक तेरे बिन तेरी बात काफी नहीं। तू हस के वेखता सही, मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां तेरे नाल ही चल दांगी। तू हस के वेखता सही, मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां तेरे नाल ही चल दांगी। समझ लाया? So beautiful song था। बहुत खूब, बहुत मैंने खूब. उनको करीबन 10 से 11 कंपोजिशन सुनाई। हाँ. बोलती यार, अच्छा मेरे को बोलते नहीं नहीं इनमें मजा नहीं है, इनमें कोई अलग कुछ नहीं है, मजा नहीं आ रहा। तो ही जस्ट उठने लगे तो मैंने ये सुनाई। हाँ. कहते ये अच्छा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इसको भी करते हैं। बहुत खूब. देन ही कंप्लीटेड। कुल मिला के कितने गाने गाए हैं आज तक? मैंने 5 तो गा लिए। 5 गा लिए ना? हाँ, एंड अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये लेटेस्ट स्टारबक्स तो अभी 10 दिन ही हुए हैं. हाँ, स्टारबक्स लेटेस्ट आया। ये बेस्ट भी कुमार ने लिखा? हाँ जी, ऑफ कोर्स। और कोई ऐसा क्या सोचेगा? नहीं कोई. तू स्टारबक्स में बेकार बक्स, कोई सोच नहीं सकता। जैसे इवन मैं बोलूंगा कि आपने अपने टाइम में जो गाने गाए, दे वर ऑल चार्ट बस्टर्स। क्यों? बिकॉज दैट दे वर ऑफ बीट, देवराया. इसीलिए वो चले। हाँ इसलिए. और आजकल क्या हो गया कि वॉइसेस नहीं चलती हैं, टेक्सचर काम करता है। अच्छा. कि लोगों को लगता है यार ये थोड़ा सा हर एक के गले में एक टेक्सचर होता है, जवारी की अलग, उन लोगों को लगता है ये अलग आवाज है, ये अलग आवाज है, तो वही हिट हो रहा है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं बॉलीवुड में गया तो आई न्यू कि किसी सिंगर को अगर पॉपुलर होना है हाँ, तो बॉलीवुड में गाए बगैर ही इज नोबडी। तो आज का माहौल ऐसा नहीं है। तब इंडिपेंडेंट म्यूजिक नहीं था। हाँ, लोग बहुत इंडिपेंडेंट थे कि बॉलीवुड में गाना आना चाहिए। अभी तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना है, सब लोग सिंगल्स कर रहे हैं। so you as an independent singer, Yeah. now you've sung 4-5 songs and you got such a following, you think you'll get a chance to sing for Bollywood? बट मिलना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए इतना कीन नहीं हूँ कि मैं उसके लिए पागल ही हो जाऊँ। So you're not desperate for नो, that, नॉट एट ऑल। like people used to be. हाँ, नॉट एट ऑल। मैं आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ बैंड जो बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हों, सारे 5-6 ही हों, और अपने सर्कल में सब अच्छे लोग हैं। यू नो द राज सोडा, ही वाज ऑन सैक्सोफोन, आप उसको कपिल के शो में भी देखते हो। But of course. वो डॉन बजाया, मैंने प्यार किया, लेजेंडरी आर्टिस्ट है। अब वो सारे मेरे को बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ. सो नाउ द टाइम इज कि आई एम फॉर्मिंग अ बैंड जिसमें वोकल भी होगा और लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स का भी मजा आएगा। विल अच्छा. जैम, विल डू समथिंग डिफरेंट थिंग। Say no तो लोगों more. को लगेगा यार इसका अंतरा गाया, उसके बाद ये सैक्सोफोन कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ. उसके बाद ये कहाँ से आ गया, ऐसे। तो दैट विल बी द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द शो। दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास। यू नो कुमार ने आपको लिरिक्स दी, सो उसके बाद आप कंपोज करते हो, इट क्या वर्क्स आपने उसको both ways. ट्यून दिया और उन्होंने? इट वर्क्स बोथ वेज। तो ये स्टारबक्स, हाँ, ये तो वही हुआ था, स्टारबक्स के सामने ही बना था गाना। हाँ, पर किसने लिरिक्स पहले थी नहीं, या इसकी पहले 2 लाइनें लिखी थी उन्होंने। उन्होंने 2 लाइन लिखी हाँ, थी? बोले तू स्टारबक्स में बेकार बक्स। आप वीडियो भी देखोगे तो हाँ. उसमें वो लड़का बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे मतलब ही हैज कंपेयर्ड दैट टू अ ब्यूटीफुल गर्ल।
So, how do you compose a song? इट्स द टाइमिंग ऑफ द सॉन्ग ना. तो ही जस्ट उन्होंने बोला ऐसा कि यार ऐसे लग रहा है ना, तू स्टारबक्स मैं बेकार बक्स, तो एक मीटर बन गया गाने का. क्या मीटर? तू स्टारबक्स कैसे? मैं बेकार बक्स, हाँ. तू स्टारबक्स मैं बेकार बक्स, ओके. तू रिच गर्ल. तो ये ट्यून आपने बनाई फिर वहीं पे. हाँ वहीं पे बैठ के. हाँ तारारारा. हाँ. तारारारा. वर्ड्स अच्छा. वही हैं. तू रिच गर्ल हाँ. मैं गरीब शख्स. तो इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ आगे स्टोरी. तेरी मेरी जोड़ी रब ने ही ना बनाई, मैं मुंडा बिल्कुल देसी, तू लड़की हाई फाई. So you're a good composer, that means, you know. Yeah, like things happen sometimes. Yes. हाँ. Yes. आपके favorite, of course, besides Jagjit Singh, who is your favorite singer? गजल्स में तो आई लाइक हरिहरन अलॉट. Yeah. हरिहरन जी बहुत अच्छा गा रहे हैं. आई लाइक पंडित अजय पोंकर अलॉट, Okay. जिनके शोज पे आता हूँ. रूप Yes. भाई, रूप भाई तो yes. बहुत अच्छे हैं. Yes. तो अब नयों में आप पूछोगे तो नयों में अभी ऐसा कोई नहीं है कि जिसको आप बोलो कि हाँ यार इसके साथ बजाना चाहिए मेरे को. मुझे लगा कि the future of India is Jazim. ऑफ कोर्स. Jazim Sharma. हाँ 100%. Because जजिम है. इतनी तैयारी. हाँ. And he is so ready He's so ready. with his material and कोई range हाँ. का problem नहीं रेंज है. का प्रॉब्लम नहीं है. और जैजिम को सारी इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है. हाँ. बिकॉज द काइंड ऑफ वोकल्स ही है. और आप देखो स्ट्रेस फ्री वोकल्स हैं. Stress free पता ही नहीं लगता कि गला हिल रहा है या नहीं हिल रहा. ये बात है. कोर्स. बिल्कुल सही बात है. एंड बेस्ट पार्ट ही इज डूइंग, ही इज आल्सो चूजिंग द राइट पोएट्री जो हाँ. अच्छी है. अच्छी है. क्योंकि मैंने नोटिस किया वो शो के अंदर अशोक जी आए पहले. हाँ. फिर बाद में राधिका जी आई. हाँ. तो उसमें टाइम इतना बीत गया हम्म. कि उनके पास सिर्फ 20 मिनट थे. हाँ. तो उन्होंने जो लिस्ट बनाया था हाँ, list ऑडियंस के बड़ी- लिए, हाँ. वो इमीडिएटली चेंज करके Change कर इन्होंने सारा लिस्ट चेंज कर दिया. हाँ. एंड ही जस्ट डिड पेपी सॉन्ग्स हाँ. एंड रेडिली. नाउ दैट्स व्हाट यू कॉल अ ट्रू परफॉर्मर, हाँ. रियली स्पीकिंग. एंड वी वर ऑल प्रेइंग स्पॉन्टेनियस, ऐसे ही बज रहा था सारा. ओ अखलाक भाई जो है हाँ. हारमोनियम पे, हाँ. वो तो मास्टर है. मास्टर. हैंडल करा रहे थे हाँ. हमारे रिदम सेक्शन को हाँ. वगैरह वगैरह. और बहुत आपने अच्छा था. बाखूबी से गिटार के पीस. हाँ. और आप ऐसे रेडिली पीसेस बजा लेते हो ना. हाँ, बिकॉज वो प्रैक्टिस अंकल ने वैसे ही करवाई है ना. हाँ. जगजीत जी के इनको वहाँ कोई कुछ भी गाना नहीं. दे दो, he'll just improvise a piece immediately. जैसे एक गाना है, आपको याद है? जी. बताइए कौन सा है? You're a very bad man. ये तो मेरा गाना है, केम छे. गाओ फिर. उसने बोला केम छे केम छे केम छे, मैंने बोला एम छे एम छे एम छे. उसने बोला नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे. अभी इस पे पीस बजाओ कुछ इम्प्रोवाइज करके. मान गए सच्ची. गाने में दम होता है तो कुछ ना कुछ बच जाता है. और ये गिटार- इसमें हमारा रोल नहीं है. हाँ. द काइंड ऑफ टीचिंग वी हैव, हाँ. चंडीगढ़ वाले गुरुजी ने भी, बॉम्बे वालों ने भी, दे आर ऑल प्लेइंग ऐसा ही. तो आपने गिटार क्यों चूज किया? आपके भाई सितार बजाते थे, तो आपको इंस्पिरेशन गिटार कहाँ से से मिला? लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती थी स्कूल में. तो मैंने जब शुरू में देखा है, हमारे वहाँ पे गिटार बजाता था बंदा बेंच पे, बड़ा एवरेज गिटार बजाता था बड़ा. और बजाता भी ऐसे था कि जैसे आपने गाया है, उसने बोला केम, ये तो आप सुर में गा रहे हो. हाँ. अब वो यहाँ से गा रहा था, उसने बोला केम छे केम छे केम छे, मैंने बोला एम छे, ऐसे बजाता. हाँ. फिर भी लड़कियां इम्प्रेस होती. मैं कहा यार ना बंदा सुर में है ना बंदा ताल में. हाँ. तो अगर इसके पास झुंड बना के लड़कियां बैठ सकती हैं, सिर्फ गिटार हाँ, तो सीखना चाहिए गिटार. सीखा. फिर सीखते सीखते सीरियस हो गया गिटार में. सिखाया किसने? सुदर्शन जी ने. सुदर्शन जी ने. क्या बात है. लेकिन उन्होंने फिर जब मैं गिटार में सीरियस हो गया तो कहते अब क्या, अब गिटार को करियर बनाना है? हाँ. मैं कहा हाँ जी. कहते फिर ये प्रैक्टिसेस नहीं है, अब चेंज कर लो. ओह, देन यू गॉट सीरियस. सीरियस इनटू इट. और यही काम आया. वो लड़कियां तो काम आई नहीं. एंड ऑफ द डे मेरे पास गिटार ही बचा मेरा. स्टारबक्स वाली बात हो गई. हाँ, जो मुझे यहाँ तक ले आया, जिसने पूरी दुनिया घुमाई, इतनी इज्जत दिलाई, तो वो यही बचा. और ये गिटार भी मैंने जगजीत जी के साथ में लिया. रियली? या अच्छा. तो बचाया, इज्जत इसी ने बचाई, उन्होंने नहीं बचाई. उन सबकी शादियां शुदियां भी हो गई. उस टाइम ऐसा ही होता है ना, क्योंकि अब जगजीत जी की जो गजलें सुनता है, जिसको इश्क ना हुआ उसको भी हो जाता है, उसका भी ब्रेकअप हो जाता है.
जी उनकी गजलों में इतनी पावर है कि आदमी ठीक ठाक आदमी को भी लगता है कि मेरे 2-4 ब्रेकअप तो हुए ही हो, पक्का ही हुए होंगे। गजलें इस हाँ। काम आती हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ऑल दी बडिंग म्यूजिशियंस जो अब नए नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर, and you being a guitarist, there are so many youngsters who want to pick up the guitar, play. उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? नंबर वन, नंबर टू, हाउ टू इम्प्रूव योर टेक्निक इन प्लेइंग सबसे गिटार? पहली बात तो ये डिसाइड करना है बाली जी, एक बड़ा कमाल का बात है। जब आप जिम जाते हो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, जब आप जिम जाते हो हाँ तो इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है आपको? इंस्ट्रक्टर सामने देख के बोलता है, अरे यार मैं तेरे बाइसेप बहुत वीक है, ये बना दूंगा, हाँ, थाइस अच्छे हो जाएंगे, सही बात, ट्राइसेप अच्छे हो जाएंगे। सही बात। वो ये नहीं पूछता कि आप करने क्या आए हो। ओके। आप गए हो फिट होने, हाँ आपको बाइसेप ट्राइसेप बनाना ही नहीं है। हाँ सेम म्यूजिक में है, जिस बच्चे को गिटार सीखना है, हाँ आप उसे पूछोगे मैंने क्या करना है, हाँ। वो बोलेगा मैंने तो गाने गाने हैं। तो गाने गाने तो उसके लिए कॉर्ड सीखो ना। व्हाई डू यू वांट टू डू सारेगामा? इसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं। हम उनको सिखाते हैं। इसकी उसको बच्चे को जरूरत ही नहीं है, ओके। उसको तो गाने उसको इतना गिटार चाहिए बस। आपने अभी बनाना शुरू किया? You're composing हाँ something. कुछ भी। इसके अंदर डमी वर्ड्स डाल के एक डमी वर्ड्स डाल दो ना। इन्होंने अभी एक ट्यून बजाई which he's composing now, and I'm telling him to put some dummy words with it. तुमको या ना हो ये समा बीते कैसे, तुमको या ना हो ये समा बीते कैसे। क्या बात है, एक गाना बन गया देखो। ओके, आपने सपोज ये गाना अभी आपने बनाया, अब मैं आपको 1 घंटे के बाद या कल सुबह पूछूंगा तो आप भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन दिस ट्यून, ऐसे अभी रैंडमली आ गया। तो आप कैसे याद करते हो? नहीं, उसका तरीका ये तो मैं, अब हम लोग हैं ही जी। और मैं तो बल्कि आपके मुंह पे नहीं बोल रहा, लेकिन हमें मोस्टली कंपनीज में और रेडियोज में और इन सब में जो लोग मिलते हैं वो बेसिकली इतने म्यूजिकल नहीं होते। इट इज लाइक कि भाई अब कोई सीए का काम कर रहा है तो आप उसको बोलो कि यार किसी का इंटरव्यू करना है तो सीए वैसे ही सवाल पूछेगा ना। अब आप खुद आर्टिस्ट हो तो उसका फायदा होता है। सो वी आर ऑन द सेम पेज म्यूजिक को लेके, है ना। तो यूजुअली जब ऐसा कुछ बनाना होता है, कुछ बनता है, तो आई इमीडिएटली रिकॉर्ड इट कि भाई यार ये रिकॉर्ड कर लो। सो यू डू रिकॉर्ड इट ना? हाँ। तो कैसे गैजेट पे रिकॉर्ड करते हो? फोन पे ही ना? वो इतना एक उसका आउटलाइन बन जाता है, मोबाइल पे आप रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर बाद में उठाते हो? उठा लेते कि हाँ जी इसको ऐसा कर लो। हाँ, दैट्स So that is फैंटास्टिक। the best way to do it. और गले के लिए आप कुछ स्पेशल खाना या डिसिप्लिन कुछ है? अभी शुरू करूंगा करना, क्योंकि अभी शोज शुरू करने हैं ना। हाँ जी। तो हूँ शुरू करेंगे। हाँ, हूँ शुरू करेंगे। हाँ, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, बिकॉज क्या है आजकल, और मेरा कोई बहुत हाई रेंज नहीं है। हाँ, जैसे आजकल सिंगर्स आ रहे हैं, दे ऑल आर सिंगिंग इन मिड। दे आर सिंगिंग वेरी हाँ, नोन वन। तो लेकिन मिड रेंज वाले सिंगर अभी लोग पसंद कर रहे हैं। रियली इट्स कमिंग बैक इनटू। या तो मेरा काम हो गया। हाँ, दे आर नॉट लाइकिंग द वेरी हाई पिच, वो खत्म हो गया। चिलमबाजी एक दो सिंगर्स हैं उसमें जो गा रहे हैं जी। बट अदरवाइज मिड वोकल्स, जैसे अभी एपी टिल्लो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एपी टिल्लो का कोई भी गाना ऊंचा नहीं है। यस 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 यस, यू आर राइट। हाँ, तो एक अच्छी पोइट्री, एक अच्छी कंपोजिशन, मिड रेंज। ओके। और हमारे पास बेनिफिट क्या है कि जो भी म्यूजिशियन सिंगर बनता है या तो उसके हाथ में ये होता है। अच्छा। वी कैन एंटरटेन पीपल विद इंटरल्यूड्स, विद गिटार पीसेस एज वेल एज विद सिंगिंग। ओके, सो इट्स नॉट टोटल वोकल। हम लोग उसको खेल सकते हैं विद ऑर्केस्ट्रा। फैंटास्टिक। इतनी सारी टिप्स मिली, and a true talented artist. We are so lucky to have interviewed him today on Laika Radio, Laika Gold YouTube channel today. And मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट, specially wishing him all the best in future. Thank you so much. सुशांत रिंकू. Thank you so much Bali ji, and thank you so much Laika. And मैं दोबारा बोलता हूँ कि I am his very big fan. I am lucky that मैं इनको कल मिला बड़े सालों बाद, I guess. And honestly, it's all heart to heart. It's not scripted or something. मैं ऐसा बोल रहा हूँ। Yes. I'm very glad. And I wish you luck. And he has promised us कि जो भी गाने इनके आएंगे, he'll give special exclusive rights to, of course, Laika to play these songs. 100%. Definitely. बिल्कुल definitely. कमाल है. Thank you very much. Thank you, sir. All the best. Thank you. Thanks.